दाऊद से आए हुए सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग यहाँ करनाल में हैं इस समय और देश का सबसे बड़ा गेहूं और जौ का अनुसंधान संस्थान है ये। तो यहाँ पर गेहूं की कई किस्में लगाई गई हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा उनके नेतृत्व में 117 किस्में लगी हुई हैं यहाँ पे। तो काफ़ी किस्में हैं जो आपके दाऊद जिला के लिए भी हैं। तो वहाँ पर आप लगाते हैं 322 लगाते हैं ना, GW 322 गुजरातवी। फिर लगता है GW 366, फिर लगता है GW 496। ठीक है, 496 के बाजू में हमने ये वाला लगवाया इस साल। इसका नाम है DBW 187। और कल ही हमको गुजरात के एक भैया ने वीडियो भेजा है, जब हम वहाँ बैठेंगे हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने बोला है कि ये देखिए लगा है 496 और बाजू में लगा है 187। तो 187 की बाली भी लंबी है, दाने भी ज़्यादा हैं 496 से। तो ऐसा मानना है कि 187 जो है वो गुजरात परिप्रेक्ष्य में दाऊद में अच्छा काम करेगी। तो अगले साल आप थोड़ा थोड़ा इसको लगाना। आप इसको बड़े आराम से देखिए, इसके नीचे जो हैं इसको गिनिए, इसको टिल्लर्स बोलते हैं हम। और ये इसके दाने हैं। आप अंदाजा से, क्योंकि किसान हैं तो नाप कर देख सकते हैं कि 496 का कितना बड़ा है, वो यहाँ तक आएगा, है ना। इसमें इतने दाने अगर ज़्यादा हैं तो उसमें आपको ज़्यादा पैदावारी मिलेगी। तो आप इसको आराम से देखिए। अगर झुकना है गिनिए कि कितने इसमें कल्ले निकले हैं या टिल्लर्स हैं। देखो, एक दो गिनो, 19 है ना। मुर्रा नस्ल की भैंस जो है वो देश की नहीं पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ भैंस है। तो कृत्रिम गर्भाधान को अपनाएं, गायों भैंसों को संतुलित आहार दें, रोज उनको खनिज लवण मिश्रण दें, उनको स्वच्छ पानी पिलाएं। बच्चा देने के 90 दिन के अंदर ही फिर उसमें बच्चा ठहरवाएं। मक्का का साइलेज बनाएं। ये टिप्स हैं अच्छे पशुपालन के लिए और वैज्ञानिक ढंग से आप खेती करें। આપણા આત્મા તરફથી રાજ્ય બહારના પ્રવાસની અંદર 2014ની અંદર સાહેબ સાથે આવેલા હતા। એ કરનાલની અંદર સાહેબની મુલાકાત થયેલી। સાહેબ એક વક્તા તરીકે ત્યાં આવેલા અને ત્યારે આપણા ગુજરાતના ખેડૂતોને બધાને પૂછવામાં આવેલું કે તમારા કયા કયા પાકો થાય છે, તો બધા બોલ્યા કે ભાઈ અમારા ઘઉં થાય છે અને ડાંગર થાય છે। તો ઘઉંમાં કોણસી વેરાયટી થાય છે એવું પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે સાહેબ આપણે બધાએ કહ્યું કે અમારા તો 496 ઘઉં થાય છે। તો 496 સાહેબ 1-1 કિલો 42 ખેડૂતો હતા, બધાને 1-1 કિલો આપ્યા હતા। એમાં બધાને સાહેબે કહ્યું હતું કે સાંજે 9 વાગ્યા પછી મને ફોન કરજો અને હું 9 વાગ્યા પછી બધાને જવાબ આપીશ। પણ કોઈએ એ ઘઉંનું જે વાવેતર કર્યું તેમાં કોઈએ સાહેબે રેસ્પોન્સ આપ્યો નહોતો। પણ મેં જે 1 કિલો ઘઉં આપવામાં આવેલા તો મારે જમીન એવી હતી, ફરતી બધી ડાંગર હતી અને આછા આછા ઘઉં ગયા હતા। પણ મને એમ હતું કે ના, આ ઘઉં મારા બરાબર સાચવવા જ છે। એટલે એ ઘઉંનું 22 થી 23ની ફૂટ આવી હતી, 22 થી 23ની ફૂટ આવી હતી અને 24 જેટલી એની જે પૂતળા હોય ને આપણા ગુજરાતી ભાષામાં, એ પૂતળામાં 3 દાણા, હા, એવી રીતે 24ની એને જે પૂતળા હતા અને એ ઘઉં 1 કિલોમાંથી મેં 30 મણ ઘઉં બનાવ્યા। અને મેં મંડલ તાલુકાના પેલા મહારાજના એક આપ્યું હતું 5 ખેડૂતોને પેલા। તો એ ખેડૂતોને હું જોવા માટે ગયો ને તો એ ખેડૂતો એમ કહ્યું કે અમે તો બધાય ખેડૂતોએ ભેગા મળી અને મહારાજને આપી દીધું। તો મહારાજના ખેતરમાં હું મુલાકાત લેવા ગયો તો મહારાજે શું કહ્યું, મેં તો થોડું ઘરનું બી અને થોડું એ મિક્સ કરીને મૂકી દીધું। એટલે આપણને ખેડૂતો માટે કંઈક ટ્રાયલ લેવા માટે કોઈ નવી ચીજ આપવામાં આવે તો એનો બરાબર સ્ટડી કરવો જોઈએ। આનો કોઈ અર્થ નથી એમ।
એટલે સાહેબની ત્યારથી ઓળખ થઈ ને સાહેબે એ વખતે કહ્યું હતું કે આપણે यहाँ धान की कौन सी वेरायटी होती है तो બધાએ કહ્યું ભાઈ અમારે તો ગુજરી થાય, ગુજરાત 70 થાય. તો સાહેબે એ વખતે એમ કહ્યું હતું कि गुजरात में कोई अच्छा धान, सुगंधित धान मेरे को पहचान इन्वॉल्व करना है तो कैसे करूं. तो मैंने साहब के साथ वार्तालाप करके बातचीत કરી મેં કહ્યું કે સાહેબ આ જે તમે કહેતા હતા સારામાં સારી ડાંગરની વેરાયટી કઈ, તો સાહેબે એવું કહ્યું હતું કે 11-21. તો મેં કીધું સાહેબ ક્યાંથી મળશે, તો કે मैं एड्रेस भेज देता हूँ. तो ये वक्त ये साहेब 3 वेरायटी, एक PR 124, एक 11-21 અને એક 1509, આ 3 વેરાયટી મને મોકલી આપેલી. મેં 2013-14 ની અંદર મેં એ 2 વેરાયટી કરેલી. ઉત્પાદન પણ સારું રહેલું અને ભાવ પણ સારો મળેલો. અને આજુબાજુના ગામના ખેડૂતો મારા ખેતરની મુલાકાત લેવા માટે આવતા હતા અને પડોશી ખેડૂતોએ રેફરન્સ આપતા અને એ કહેતા કે અમારા ગામની અંદર, ગામના ખેડૂતો એવું કહેતા કે અમારા ગામની અંદર જુઓ એક બહારથી સુગંધિત વેરાયટી જે આવી છે એ ઘોડાના પૂંછડા જેવું લોળિયું છે એનું, અને 1 કિલોમીટર તો એની સુગંધ ફેલાય છે. અને એનું ઉત્પાદન ઓર્ગેનિકમાં 40 મણ રહેલું હતું અને મેં 90 રૂપિયા કિલો ચોખા વેચેલા. तीन वैरायटी गुजरात में बहुत पॉपुलर है. GW 496 काफी अच्छा माना जाता है. आगे सर, पिछले साल जामनगर से आपकी तरह एक ग्रुप आया था. तो जैसे इन्होंने हमसे कुछ बीज लिया, हमने गिफ्ट में भी दिया है, फ्री में. हमने जामनगर में जो भेजा था वो था DBW 187. और जामनगर के भैया ने हमको वीडियो भेजा है, वो हमने YouTube चैनल पे लगा दिया अपने, आप उसमें देख पाएंगे. तो उस भैया ने अपने से ही कहा है कि मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है खुद का कि ये गुजरात में डाला जा सकता है. डाला जा सकना गुजरात का शब्द है, हम तो कहते हैं कि ये गुजरात में भी बोया जा सकता है. तो उससे स्पष्ट हो गया है कि एक्सपेरिमेंट हो गया है. तो आप लोग भी इस साल अक्टूबर-नवंबर में जब गेहूं डालेंगे, लगाएंगे नहीं, डालेंगे, तो कुछ एरिया में DBW 187 को जरूर लगाना. और ये जीरो बजटिंग और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है, ठीक है. तो जीरो बजटिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये मेरे लिए कोई नया शब्द नहीं है. मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे भी काम करता रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती पे भी काम करता रहा हूँ. तो इसमें कई चुनौतियाँ भी हैं क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइज़र से खेती करते रहे हैं, तो उसकी पैदावारी बहुत ज़्यादा आती रही है. मगर थोड़ा सा हिम्मत रखने पे उसमें गोबर का खाद डालना है, उसमें गौमूत्र डालना है, उसमें और कई तरह की चीज़ें हैं जो हम कल कुरुक्षेत्र में आपको दिखाएंगे. तो उस तरह की खेती में हम प्राकृतिक जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनसे हट के प्राकृतिक में आएंगे, तो एक तो हमारा खर्चा बचेगा और दूसरा पर्यावरण सुरक्षित होगा. और तीसरा नंबर, जो भूमि की उपजाऊ शक्ति खराब हो रही है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. गोबर का खाद डालने से, गौमूत्र डालने से और नीम के साथ कई और चीज़ों के साथ जो जो भी आप डालेंगे वो सब जैविक होगा, वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल वाला नहीं होगा. तो उससे भूमि में जीवाणु और केंचुए, ये जो हमारे दोस्त थे पहले जो अब नहीं दिखते हैं, वो सब हमको दोबारा मिल जाएंगे और अपने से ही पैदावारी भी बढ़ेगी. अगर नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाश की मात्रा
हम 22 ट्रॉली गोबर का खाद डाल कर देंगे, या एक ही गाय से हम गौमूत्र में डाल के गोबर और फिर उसको ऐसा बनाते हैं कुछ उसमें जीवामृत, तो उससे आप बराबरी कर सकते हैं, मगर थोड़ा मेहनत का काम है। मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रकार के पैदा किए गए या बनाए गए उत्पाद बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो कुछ लोग नहीं, सब लोगों से ये अपील करेंगे आप कि वो थोड़ा थोड़ा खेत में धीमे धीमे शुरू करें और फिर सारे खेत में इसको स्विच कर दें। मैं अपनी बात को यहीं बंद करता हूँ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।